Ladies and gentlemen, good afternoon. I welcome you all to the Q4 and FY24 post-earnings conference call of Mac Power CNC Machines Limited. Today on the call from the management we have with us Mr. Rupesh Mehta, Chairman and Managing Director, Mr. Rajnikant Raja, Chief Financial Officer, and Mr. Kishore Kakani, Company Secretary. As a disclaimer, I would like to inform all of you that this call may contain forward-looking statements which may involve risk and uncertainty. Also, a reminder that this call is being recorded. I would now request the management to brief us about the business and performance highlights for the quarter and the year that went by, the growth plans and vision for the coming year, post which we will open the floor for Q&A. Over to you, sir. Good afternoon, everyone. First of all I earnestly welcome you all to Quarter 4 FY24 post-result conference call. Thank you very much for believing Mac Power. As an investor, I want to assure you that we are fully committed to maximizing the value of our shareholder, and we promise to deliver the best of us. With your support and backing, we are confident to achieve every greater height in the days to come. We will have a brief about the overall performance of the company for the quarter and the year. The financial results have been posted on the company's website and hope you all have had an opportunity to go through the same. Let's explain the overall performance of the company. This quarter 4 FY24 has been remarkable by Mac Power is remarkable highest performance in the history of Mac Power in terms of all the aspects like revenue, EBITDA margin, PAT, EPS, order book, etc. And also break past all highest record. I am delighted to announce that the company has achieved the growth whatever we promises. And in this meeting we recommended a dividend which we promised in our dividend policy by 15%. So if you all have a presentation, I would like to give you the highlights about the quarter 4 revenue. Quarter 4 2023 versus quarter 4 2024. The revenue was 54.3, increased by 71.3, which is 31%, and this quarter 4 revenue is the highest ever revenue in Mac Power history in all the quarters. In the EBITDA margin, in the terms of the percentage, EBITDA margin quarter 4 2023 was 9.3%, and quarter 4 it increased by 18%, nearly double. So EBITDA margin is also a double in this quarter 4 versus quarter 4 2023. And in also same thing happened in the PAT margin. PAT margin in a quarter 4 2023 was 3 crore, which increased by 9 crore, it almost 3 times. So PAT margin is also increased. And same thing is increased by EPS in quarter 4. Last year, the quarter 4 EPS was 3%, and now it's 9 rupees. Quarter 4 2023 EPS was 3 rupees, and now it's 9 rupees. So it's almost 3 times. Now I would like to give you a brief about annual revenue, which is also a highest ever in Mac Power history. 2023 quarter 4 revenue was 202 crores, which increased by 241 crore. And similarly, annually, quarter 4 23 EBITDA margin in percentage was 10.2,
which increased by 14.7, and EBITDA revenue 20 crores 7 lakh to 35 crores 3 lakhs. So almost 71% increase in the EBITDA margin. And in PAT margin year on year, quarter 4 23 was 12.9, 6.4%, which increased by 10.1%. And quarter 4 FY24 revenue 24.3. So almost nearly a double than last year. So PAT margin is increased by 24.3. Similarly, EPS same 12.9 to 24.2 in last year. About the order book, I would like to give you some brief about the order book. 2023, we have a 153 crore opening order book, which increased to 262 crore. So it is 72% hike in the order book. FY24 opening pending order book 153, so 260, 72. Order book is increase in the Nexa product, high valued machine, aerospace, defense, hence this giving a significant growth to the company. We are expecting a 10 to 15% business from more than 50 lakh to 2.5 crore high valued machines. Hence, our more focused and defense and aeronautic business and Nexa products like VTL, HMC, DCM, and automation. In terms of the bidding also, which is because of the government policy, which is the highest ever bidding we submitted. In the tender business, we call tender business, where the defense, aeronautic, and education, mostly these three segment is covered in this tender business. So last year, our tender bidding was 102 crores, which increased by almost 3 times, 283 crores. And our domestic quotations bidding we had submitted to tier 2, tier 3, tier 4 was 335 crore, which increased by 497 crore. So filing the tender and filing the bidding, which is increased, hence we are expecting significant growth in terms of FY25 with new heights, expecting order book. Right now, existing order book is 262 crore, and our bid submitted is almost nearly a 700 crore. So we are expecting another 250 crores new order. So our order book would be 550 or more in the end of this year. So I would like to announce some key highlights about our future. Annual capacity, as we promised in last meeting, is already increased by 2,000, which we will utilize in July first week. Almost all the building and construction work and machines installation is completed. Right now we have a 200 kilowatt installed solar power plant, and in this new building we are adding another 600 kilowatt rooftop solar power plant, and it will be effective in Q2. So almost 90% of our power generation, day power generation, will be generated through the green energy. About the R&D center, Bangalore, for new kind of technology development, new generations machines like semiconductor, like EC, EMS, highest consumption of EMS like a laptop, mobile, medical equipment. This kind of the machines is the new generation machines and 5-axis machines. So these premises we already received from the
our team, and maybe in July will be in operation for R&D center at Bangalore to develop the new generations, machines and softwares at Bangalore plant. We are exploring discussion with the different global companies for co-manufacturing transfer of technology, co-marketing partnership for domestic and global marketing for the new technology, CNC machines in our portfolio. So we are in touch with the few world global player for the next level machines. So we'll do the technical collaboration or JV that it's in progress. And capex, like every year we are doubling the capex. This year also same journey we are planning that will add the more capex to increase the capacity and to develop the new generations machines. And your company's highest revenue, highest the EBITDA, highest the PAT, but we are the lowest in the expenses. We are the low cost manufacturing company. We are debt-free company, and our direct indirect manufacturing expense is lowest in the machine tools industries. We have a huge product basket. We are in the top 5 machine tools manufacturer in India. We have a 3,000 plus application solution. We have a 315 product variant and model. We have a 27 industrial segment we are serving right now, and 27 product segments where we have a 315 models. The major product basket and segment is turning machines, VMC, vertical machining center, VTL, DCM, HMC, and automation, IoT 4 and 5-axis machining. This is our product basket. We have a 39 city. We have a sales and service, a distribution network. We are adding the few more technical center in the coming future. We are serving to the various applications like automobile, agriculture equipment, defense, aerospace, EVM, power plant, medical instrument, pharma, jewelry, dye and molds, so many. And general engineering. So we have a lots of variant for the different kind of the segments. Our network, we have a 6 branch offices. We have a 39 destination. We are distributing and giving the service and training to our customer. We have a 4 tech centers. We have a 9 business associate and 800 plus employee in your company's family, and qualified sales and service team is nearly 143. Your company achieved the lots of awards recognized by Indian Machine Tools Association in IMTEX by back-to-back 5 award 2015, 2013, 2017. We got 2011. So 5 years back-to-back best design and best product award we win in past. And after that, we stopped to participate in the award ceremony. So this is the highlight for Q3 and Q4. Vinayji, we can start the question and answer. Sure, sir. Anybody who wishes to ask a question may please use the option of raise hand. Anybody who is not able to raise hand may put the question in the chat box and we will ask on your behalf. All those who wish to ask a question, please raise hand. So we'll take the first question from Kush. Kush, you can go ahead. Yes, Rupesh ji, congratulations. Another good quarter. Thank you, Kush bhai. Congratulations. Thank you. Yes, yes, sir. सर कुछ 2-3 सवाल थे इस बार. सो इस क्वार्टर में रियलाइजेशन 19 लाख जो होता था वो 20 लाख हो गया है. तो सर कुछ हाई वैल्यू ऑर्डर्स थे, कुछ डिफेंस के ऑर्डर्स थे. डिफेंस का कितना बिजनेस हुआ सर, कुछ क्वांटिफाई कर पाएंगे? नो, डिफेंस बिजनेस का भी काफी अच्छा रहा है, और हाई वैल्यू जो नेक्सा प्रोडक्ट है VTLs, उसका एग्जीक्यूशंस भी काफी अच्छा हुआ है. और
अभी हमारा जो नेक्सा प्रोडक्ट है उसमें डबल कॉलम पे फोकस कर रहे हैं, तो यस, डिफेंस के कारण मार्जिन्स बढ़ा है, और कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशंस भी हमारा कंप्लीट हुआ है जिसमें हमारा मार्जिन इंक्रीज हुआ है। ओके सर, डिफेंस कितना धंधा हुआ है, कुछ क्वांटिफाई कर पाएंगे सर? एवरेज जो एग्जीक्यूशन है, ऑर्डर बुक तो काफी बड़ा रहा है, लेकिन उनका जो एग्जीक्यूशन का टाइम है वो बहुत ज्यादा रहता है, 6 to 8 मंथ। तो लास्ट 6 मंथ में जो ऑर्डर आए हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, ये क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में हो गए, लेकिन ओवरऑल 15 to 20% के अंदर हमारा टेंडर बिजनेस जो है उसका एग्जीक्यूशन हुआ है लास्ट ईयर में। ओके ओके सर, दूसरा एक वर्किंग कैपिटल पे एक क्वेश्चन था। हमारे एडवांस का बिजनेस है, फिर भी रिसीवेबल्स कुछ बैलेंस शीट पे 22 करोड़ के दिख रहे हैं सर इस साल मार्च में। इसमें इसमें दो चीज हमने ऐड की है कि जो अपने बिजनेस एसोसिएट्स है, डीलर्स है, इसमें 10 to 15 करोड़ के बीच का जो है वो टेंडर बिजनेस है, जिसमें ऑब्वियसली वो पेमेंट है आपको 90 डेज में मिलता है या मशीन कमीशनिंग के बाद मिलता है। तो वो पैटर्न बहुत सालों से है। कुछ जो 5 to 7 करोड़ हुआ है इंक्रीज, वो हमारा जो डीलर्स है उनको हमने वहां पे स्टॉक एंड सेल के लिए जो कैटलॉग प्रोडक्ट होती है, जो हॉट सेलिंग है, एवरी डे सेल्स होता है और कस्टमर को सेम डे डिलीवरी चाहिए, तो हमने थोड़ा स्ट्रेटेजिकल चेंज किया है कि हम अपने डीलर को 30 डेज 60 डेज क्रेडिट पे कुछ रेगुलर मॉडल उनको देंगे कि वो सेम डे बिलिंग कर पाए। ओके। और सर 262 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और आप कह रहे हैं कि 700 करोड़ की बिडिंग करी है, उसमें से कुछ हो सकता है 250 करोड़ 300 करोड़ ऑर्डर और मिले। तो सर FY25 का कोई गाइडेंस दे पाएंगे कि कितना रेवेन्यू आप टारगेट कर रहे हैं इंटरनली, और क्या मार्जिन पे? बिकॉज मार्जिन भी अच्छा बढ़ गया है हमारा, इस लास्ट 3 क्वार्टर में कंटिन्यूस मार्जिन बढ़ा है सर। तो मार्जिन जो है, जो Q4 में जो 17% हुआ है Q4 में, वो मेरे ख्याल से सस्टेनेबल रहेगा। एंड ऑफ द ईयर भी मेरे ख्याल से 16 to 18 के बीच में, होल ईयर की बात करूं मैं, तो रहेगा। और ऑर्डर बुक जो है वो बढ़ेगा हमारा। एग्जीक्यूशंस के लिए सारी ऑर्डर बुक को कंप्लीट करने में 1.5 year जितना लग जाएगा। 1.5 ईयर सर। एनी गाइडेंस सर रेवेन्यू पे FY25, कोई रेंज कुछ दे पाएंगे सर, क्या देख रहे हैं? देखो, 35 करोड़ का ईबिटा हुआ है, 24 करोड़ का पेट हुआ है, तो मिनिमम जो मेरा रेंज है वो 20 to 35% इंक्रीज रहेगा दोनों साइड से। ओके। और सर ऑर्डर बुक में अभी डिफेंस के कितने ऑर्डर्स होंगे सर 262 करोड़ में? डिफेंस के ऑर्डर हमारे उसमें 8 to 9% रहेंगे। 8 और to जो 9%। बिडिंग हुआ है कुश भाई, वो बिडिंग जो हुआ है लास्ट 6 मंथ में, वो अनबिलीवेबल बिडिंग हुआ है, क्योंकि एवरेज में अगर जनरलाइज बात करूं, तो हमारा एवरेज जो आ रहा था पर मंथ का बिडिंग का, वो 20 करोड़ का था। वो जंप करके 40 करोड़ पे आ रहा है लास्ट 6 मंथ से। तो टेंडर के अंदर फ्लोटिंग्स बहुत हुए बिडिंग, और बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, क्योंकि डिफेंस के काफी लोग और ब्यूरोक्रेट सब इलेक्शन में बिजी रहेंगे, तो टेंडर्स बहुत फ्लोट हुआ। इसलिए आप देखेंगे कि 3 टाइम हमारा टेंडर बिडिंग बढ़ा है। लेकिन ओपन होने का अभी स्टार्ट होगा आफ्टर दिस रिजल्ट। तो मैं मान रहा हूँ कि ये साल हमारा टेंडर पे और डिफेंस पे 15 से 20% का मिनिमम फोकस रहेगा रेवेन्यूज पे। ओके। और सर कैपेसिटी हमारी 2000 मशीन्स की सर Q1 से आ जाएगी। उसके अलावा सर कुछ और कैपेक्स करने का इरादा है साल में? हाँ, आपने ये कुछ दिया साल है में प्रेजेंटेशन में, 15 नहीं, करोड़ का कुछ? 15 से 20 करोड़ का प्लानिंग है ये साल नया कैपेक्स ऐड करने का। और मेरे ख्याल से उसमें हम और भी कैपेसिटी नेक्स्ट ईयर के लिए ऐड कर सकते हैं। और कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशंस जो है
उसके लिए जहाँ पे बोटल नेक्स है प्रोडक्शन रैंप अप करने के लिए, वो भी हम ये कैपेक्स के थ्रू दूर करेंगे। ओके, थैंक यू सर, मैं फिर आता हूँ क्यू में। थैंक यू ऑल द भाई, बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Thank you, Kush. We'll take the next question from Piyush Jain. Piyush, you can go ahead. Piyush? Yeah, am I audible? Yeah. Yeah, you are able. Yeah, Ritesh भाई, congratulations, great set of number as always delivering. सर थैंक मैं यू दो पीयूष चार भाई। चीजें हाँ, मैं ये दो चार चीजें ये जानना चाहता हूँ, मतलब इन ब्रॉडर टर्म, कि जैसे आप हम हर बार बोलते हैं कि आप लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूस करते हैं और आपने कुछ वो रेंज भी दी थी कि आपका कॉस्ट 17% या ऐसा कुछ होना चाहिए, देन ओनली यू कैन सस्टेन और समथिंग। बट वी आर सीइंग फ्रॉम लास्ट 4 क्वार्टर हमारा मार्जिन 8-9% से 14-15 या 17% हुआ है। तो सर ये जो मार्जिन हमारा बढ़ा है, इज इट बिकॉज ऑफ कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है तो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज आया है, या इसमें मिक्स चेंज हुआ है, या इसमें हमने हाई हाई नेक्सा मशीन और वो उनका मिक्स चेंज हुआ है, ये है। और ये 17% मार्जिन है, ये कितना सस्टेनेबल है और यहाँ पे फ्यूचर में ये और एक्सपांड हो सकता है? ये पहला जो आपने बताया, एक तो ऑपरेटिंग लिवरेज के कारण भी हुआ है। फिक्स कॉस्ट जो हमारी है वो आपको मैंने पहले भी पास्ट में डिस्कस किया है कि फिक्स कॉस्ट हमारी रहेगी। अगर रेवेन्यू रैंप अप होता है तो सीधा 30% का फैट पे असर आता है, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ मिला है उसका। दूसरा, हायर एंड जो प्रोडक्ट है जो नेक्सा में, उसका रियलाइजेशन काफी अच्छा हुआ है। और थर्ड थिंग इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जो हमने एक प्रोजेक्ट चलाया है कि कुछ कंपोनेंट अब हम लोग इन हाउस करेंगे, हम सप्लायर से नहीं लेंगे, तो हमारी मटेरियल की कॉस्ट जो है वो कम हुई है, इसलिए मार्जिन बढ़ा है। तो काफी तीन चार एक्सपेक्ट है। एक तो लेवरेज का है, फिक्स कॉस्ट का। दूसरा है कॉस्ट पे कंट्रोल किया है कि हमने प्रोडक्शन जंप किया, लेकिन हमने आप देखेंगे तो लास्ट ईयर की कंपेयर में 20% का अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, विच रिड्यूस्ड इन 18%। तो वो भी हमने कंट्रोल किया कि कॉस्ट पे ध्यान दिया है। तो सभी एक्सपेक्ट को मिला के ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और सस्टेनेबल रेवेन्यू जो है वो ऑल ईयर का मैं मान रहा हूँ कि जो 14.5 के आसपास हुआ है लास्ट ईयर, और Q4 में 18 हुआ है, तो 16 to 18 पूरे साल में रहेगा। और मैं भी हम लोग उसको जैसे जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, लेकिन ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे हम, जैसे ज्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे हाई वैल्यूड मशीन पे, जैसे कि हम लोग इस बार 10 to 15% हायर वैल्यू 50 लाख to 2.5 करोड़ पे फोकस कर रहे हैं। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे, कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे, कॉस्ट पे ध्यान रखेंगे, तो ये अप टू तक पीयूष भाई हम लोग इन फ्यूचर ये ईबिटा मार्जिन को लेके जा सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज और, हमने जो ये पाइपलाइन बताया, हमने ऑर्डर बुक बताई है 260 करोड़, और हमने एक पाइपलाइन भी बताया जो हम हर बार बताते हैं अराउंड 780 करोड़ के आसपास। सर पहली चीज ये जानना था कि ये 780 करोड़ में आपको कितना एक्सपेक्ट लगता है कि इसमें से कितने का ऑर्डर आपको मिल सकता है? देखिए दूसरा टेंडर, चीज ये। पहले हाँ क्वेश्चंस सर। में हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए आप क्वेश्चन। हाँ जी, नहीं नहीं, आप बोलिए रुपेश भाई, आप बोलिए। पहले टेंडर बिजनेस का एवरेज निकला है अपना अब तक का 12 to 18% का L1 का। तो मैं हम्म। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट का जो टेंडर बिडिंग है उससे हमें 12 से 18% का ऑर्डर मिल सकता है वहां से। और जो हमारा ये फाइल किया हुआ है, अब तक हमने कोटेशंस दिया हुआ है उसकी बात है, लेकिन पूरा साल पड़ा है, अब तो अभी और हम लोग नए कोटेशंस देंगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अनदर 250 करोड़ का फ्रॉम टेंडर फ्रॉम डोमेस्टिक, और जो कस्टमर अभी तक हमने उसको बिडिंग ही नहीं दिया है, नेक्स्ट मंथ बिडिंग देंगे। उसके बाद नेक्स्ट मंथ जुलाई में देंगे, जून में देंगे, जुलाई में देंगे, अगस्त में देंगे। तो गवर्नमेंट की ऑर्डर से डिफेंस की ऑर्डर है उसको भी एग्जीक्यूट करने का टाइम मिलेगा। डोमेस्टिक के अंदर भी हमें नई इंक्वायरीज जो आती है, हमारे फील्ड में जो सेल्स इंजीनियर्स घूमते हैं वो भी नए नए बिडिंग सबमिट करेंगे। तो
ये ऑर्डर बुक है वो जो मैं बोल रहा हूँ उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो मोटा मोटा अगर हम पकड़ते हैं तो विल क्लोज ऑर्डर बुक बाय 500 to 600 करोड़ इन दिस फाइनेंशियल ईयर। इन दिस फाइनेंशियल। और सर ये टेंडर और डायरेक्ट में मार्जिन का फर्क होता है क्या? टेंडर में आप थोड़ा सा कम मार्जिन पे वो करते हैं, या आप नहीं, आप मार्जिन को मेंटेन करने के हिसाब से ही बिड करते हैं? क्योंकि आपने पहले भी बोला था कि आप लो मार्जिन वाले बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। जैसे आपने पिछली बार एक एग्जांपल दिया था कि टाटा का कुछ फोन का या कुछ था, बट आपने देखा वहां पे मार्जिन नहीं है तो आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, करेक्ट? उसमें एग्जैक्टली जो टाटा का था उसकी बात अलग ये थी कि सभी में से किसी ने भी नहीं किया था एक्सेप्ट एक और दो। उसमें कंडीशन हम्म। थी कि आपको पूरा प्रोडक्शन उनको देना है तो आपका वो मार्केट से निकल जाएगा। और दैट टाइम हमारी कैपेसिटी 1200 की थी और उनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत काफी थी। लेकिन टेंडर बिजनेस में हम लोग जो प्रोडक्ट देते हैं उसमें मार्जिन ज्यादा रहता है क्योंकि सर्विसेज बहुत है उसमें, ट्रेनिंग का, कंपोनेंट प्रूव आउट का, ट्रायल्स का, उनका पीडीआई का। तो ये सब के कारण उनकी जो एक्स्ट्रा वैल्यू एडिंग सर्विस है उसके कारण उसमें कॉस्टिंग ज्यादा आती है जिसमें हमें एक अच्छा मार्जिन मिलता है। और डोमेस्टिक का मार्जिन भी कैटलॉग प्रोडक्ट टू लेके हायर एंड प्रोडक्ट जो होती है उसमें अलग अलग रहता है। तो यस, डिफेंस और एरोनॉटिक बिजनेस में मार्जिन ज्यादा रहेगा और ऑर्डर बुक विल बी क्लोज बाय 500 to 600 करोड़। ओके सर, हमने मतलब ये लास्ट 3 महीने में, क्वार्टर में, अगर कोई नया क्लाइंट अगर हमने ऐड किया है, और ओवरऑल आपके हिसाब से ये सीएनसी मशीन का डिमांड आउटलुक वगैरह कैसा चल रहा है? मतलब इसमें इसमें टेलविंड्स तो है सेक्टर में, बट हाउ दिस इज ग्रोइंग एंड कितनी इंक्वायरीज और कितना आ रहा है, और आपको क्या लग रहा है कि कितना कितना बिजनेस डोमेस्टिक मार्केट से हो सकता है, बिकॉज इसमें इंपोर्ट भी काफी होता है। नहीं, जो हम मैं जो प्रोडक्ट अब बात कर रहा हूँ जिसमें अलग अलग सेगमेंट्स है हमारे, जो टर्निंग मशीन है, वीएमसी है, मैं ऑलमोस्ट टर्निंग मशीन में इंडिया 99% में बोलूँ तो 2 और 3% से ज्यादा इंपोर्ट नहीं होता होगा। वीएमसी में 10% से ज्यादा इंपोर्ट नहीं है। जो इंपोर्ट है कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स का है जो इंडिया बहुत कम बनाता है या फिर बनाने की उनकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज नहीं है। तो वो टाइप की मशीनों में इंपोर्ट का रेशियो ज्यादा है। लेकिन ये टाइप की में डोमेस्टिक प्लेयर्स आर एफिशिएंट टू डिलीवर्ड। और क्या था आपका दूसरा क्वेश्चन उसमें? दूसरा सर यही था कि मतलब ओवरऑल डिमांड आउटलुक कैसा लग रहा है आपको, बिकॉज आप ऑर्डर बुक और डिमांड ये सब तो काफी। डिमांड में तो आप देख रहे हैं कि ये मोदी साहब का 0.3 अभी शुरू हुआ है कैपेक्स के बारे में और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, जो उनका डिफेंस के बारे में जो विजन है उसमें हर एक डिफेंस और एरोनॉटिक कंपनी के पास भर भर के ऑर्डर पड़ा है। और काफी हमारे जो क्लाइंट है उसमें आपकी बात करूं तो नया क्लाइंट है हमने मार्च में जिनको 5 करोड़ की मशीन दी वो बीएचईएल है, बेल। और अभी हमारे पास उनके काफी पेंडिंग ऑर्डर्स भी है। और फ्यूचर में भी हम लोग एक बहुत बड़ी मशीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसकी वन मशीन की कॉस्ट 25 करोड़ है। तो एरोनॉटिक एंड डिफेंस के अंदर काम बढ़ने से और ईएमएस के अंदर काम बढ़ने से प्लस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडिया का जो फोकस है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण जो सब्सिडीज है, कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन्स है, ये सब को देखते हुए मुझे लग रहा है कि 25-30% का जो सीएजीआर का ग्रोथ चल रहा है मशीन टूल्स इंडस्ट्रीज में वो ज्यादा बढ़ने का मुझे अनुमान है। जिसमें एक नया फैक्टर है जो कैलकुलेट नहीं हो रहा है, वो भी ऐड कर सकता हूं मैं कि पास्ट में मशीन्स की कीमतें ज्यादा थी। टीयर 3 टीयर 4 कस्टमर को एक्साइज जो है वो रिफंड नहीं मिलती थी, कॉस्ट में ऐड हो जाता था। और उसके बाद गवर्नमेंट की ऐसी कोई 25% सब्सिडी और इंटरेस्ट फ्री लोन की कोई स्कीम नहीं थी। अब ये सब स्कीम के कारण जो पास्ट की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो ऑलमोस्ट 24/7 मशीन्स चलाती थी 2 शिफ्ट्स में। लेकिन ये सब फैसिलिटीज आने के कारण
ये लोगों ने चालू किया है कि हम 12 आवर्स ही चलाएंगे और दूसरा मशीन खरीदेंगे, क्योंकि उनको नाइट में जो रिजेक्शन, रिवर्क और डैमेजेस का जो नुकसान आ रहा है वो बहुत ज्यादा है। तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। नया क्लाइंट में डिफेंस में पहले से ही मैक पावर के क्लाइंट में सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जैसे कि डीआरडीओ, फिर अपना इंजन फैक्ट्री, एचवीएफ हैवी व्हीकल फैक्ट्री जो T90 टैंक बनाती है, इसरो, बीएचईएल, और अभी जो नया अपकमिंग हमें लग रहा है वो पीएसयू कंपनीज के पास भी काफी ऑर्डर्स है। तो हमारा वो डिस्कशन भी अभी फ्यूचर के लिए चल रहा है। तो ये सब हमारे नए क्लाइंट हुए हैं डिफेंस में। और डोमेस्टिक में अहमदाबाद की बहुत बड़ी ग्रुप्स है, वो हमारे नए क्लाइंट्स बने हैं, जो यही फैक्टर के कारण एवरी मंथ दे आर बाइंग एंड एडिंग द फ्यू मशीन्स। वो 12 आवर्स ही चलाना चाहते हैं। और राजकोट बेस्ड एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन हमारे से ले रही है। अब उनको पूरा 24 आवर्स चलाना है, पर रोबोट से चलाना है। तो एक रेवोल्यूशन ट्रेंड दो फैक्टर से मैं देख रहा हूँ। और मैन्युफैक्चरिंग का ये डेकेड है, ऐसा मेरा पर्सनल जो अनुमान है कि अभी भी हम लोग 16% से ज्यादा शायद जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं मशीन टूल्स अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और कंजप्शन की बात करेंगे अगर पीयूष भाई वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड का जो कंजप्शन है मशीन्स का, उसमें अभी इंडिया 3% का कंजप्शन कर रहा है। अगर आप उसको मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल वर्ल्ड का लीडर बनाना चाहते हैं तो आप समझते हैं कि किस लेवल पे हमारा कंजप्शन बढ़ेगा मशीन टूल्स का। क्योंकि आज की डेट में वर्ल्ड का जो फिगर है उसमें वी आर यू कंज्यूमिंग ओनली 3%। तो एक अगला डेकेड है वो मैन्युफैक्चरिंग का है। और मैन्युफैक्चरिंग के साथ हम लोग जुड़े हैं, क्योंकि हम लोग बैकबोन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के। जैसे मैंने काफी बार बताया कि 7 कंपनियां है, वो ऑलमोस्ट 89 to 90% मार्केट को सर्व करती है, और ग्रोथ भी वहीं से आने वाला है। बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन ये इंडस्ट्रीज में और मैन्युफैक्चरिंग में अगला डेकेड्स में देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। सर एक दो क्वेश्चन और है मेरे छोटे। एक चीज आपने शुरू में कुछ बोली कि आप किसी फॉरेन कंपनी के साथ कुछ टाई अप या वो देख रहे हैं, तो उसके बारे में जरा थोड़ा सा डिटेल और बताएंगे कि हम क्या सोच रहे हैं। दूसरा छोटा सा सवाल यही है कि क्या ये हमारी मशीन्स में एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है क्या, कि फ्यूचर में हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं क्या, आर वी दैट मच कॉस्ट कॉम्पिटिटिव। सेकेंड चीज ये कि नेक्सा का जो शेयर है आज के डेट में टोटल मशीन जो हम बेचते हैं उसमें शायद अभी जो मेरे को नंबर समझ में आ रहा है, हमने ड्यूरिंग द ईयर 1200 बेची, उसमें से 84 नेक्सा है, विच इज अराउंड 7-8%। क्या ये आउटर बुक में ये शेयर 27% है, तो नेक्सा का शेयर फ्यूचर में बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो क्या 20-30% होगा, और क्या हम इसको इस साल में किसी क्वार्टर में 100 करोड़ रेवेन्यू टच करेंगे? तो पहला जो है कि हम लोग जो मीटिंग्स कर रहे हैं बाहर आपने की, कुछ एक फॉरेन कंपनी के साथ कुछ अपॉर्चुनिटी का बोला, थोड़ा सा कुछ कुछ बात चल रही है। अपॉर्चुनिटीज के लिए अभी तक हम लोग वर्ल्ड के बड़े प्लेयर्स में से 2 के साथ मीटिंग कर चुके हैं। इसमें वेरियस डिस्कशन हुआ है। एंड कुछ जायंट्स भी है वर्ल्ड के, जिनके प्लांट्स ऑलमोस्ट 3 to 4 कंट्रीज में है। और वर्ल्ड के अंदर जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, मेटल एडिंग टेक्नोलॉजी, अपना सेमीकंडक्टर मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग, और डिजिटल वॉचेस, लैपटॉप्स और मोबाइल, ये सब एरोस्पेस, उसके अंदर उनकी मास्टरीज है। उसके साथ मीटिंग हुई है, उसमें काफी डिस्कशन है। दे आर ऑल्सो लिस्टेड इन देयर कंट्री, और 2-3 कंट्री में लिस्टेड है। और उसमें हम लोग वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उनका यूज करेंगे। उनकी कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इधर होगी, और हम लोग उनसे टेक्नोलॉजी लेंगे इन द टर्म विद द रॉयल्टी बेस। तो ये सब चीज तो चलती रहती है, एक प्रोसेस है। उसमें एक यूरोपियन कंपनी के साथ भी डिस्कस हुआ है, लेकिन अभी टू अर्ली टू डिस्कस अबाउट दिस। बट दिस इज द थॉट प्रोसेस कि इन फ्यूचर
हम जो एक्सपेंशन बहुत बड़ा करने जा रहे हैं उसके अंदर यस हम लोग ऐसा कुछ आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका जो था नेक्सा के अंदर, तो नेक्सा पे हमने फोकस्ड नहीं किया था बिकॉज ऑफ कैपेसिटी। अब कैपेसिटी बढ़ रहा है तो डेफिनेटली मेरा प्रेजेंटेशन में भी था पीयूष भाई कि 12 to 15% हम लोग नेक्सा पे इस साल फोकस करके जो 7% अच्छा था सर। वो डबल करेंगे। तो ये ओके। नेक्सा अभी न्यू बेबी है जो हायर एंड प्रोडक्ट है, तो वो हम लोग इस साल डबल करने का प्लान कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन रहा कुछ बाकी आप? सर दो और थे, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी कितनी है Piyush, इसमें, और let's क्या? allow others to ask questions. Yeah, या जस्ट I would request you to come back in queue. We'll take the next एक्सपोर्ट question के from श्योर। Hiten. अंदर इंडिया का Sir, खुद का एक्सपोर्ट बहुत कम है, मैंने पहले भी बताया था बहुत कम है, 1 to 2% से भी कम है। और क्योंकि डोमेस्टिक आपका जो कंजप्शन है वही काफी ज्यादा है, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए आपको थोड़ा अलग से डिजाइन, उसकी कंट्री की पावर कंडीशन, लैंग्वेज, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो एक स्पेशलाइज टास्क हो जाएगा, लेकिन वो एक्सपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क भी डेवलप करना पड़ेगा। तो इनिशियल स्टेज में, ग्रोइंग स्टेज में मुझे लगता है ये अर्ली है। कोई हमारा एसोसिएटेड पार्टनर जो जॉइंट होता है उसका वर्ल्ड वाइड में ऑलरेडी नेटवर्क रहेगा, तो हम उनके थ्रू एंट्री करेंगे। अभी तक हमने यूएस, यूके, रशिया काफी मशीन्स भेजे हैं, लेकिन उसमें हमारा एफर्ट नहीं रहा है। लेकिन एफर्ट वाली गेम जो है वो मेरे ख्याल से हम किसी के साथ जुड़ेंगे तब शुरू करेंगे। अभी तो मुझे लगता है कि इंडिया का जो ग्रोथ है और डिफेंस एंड एरोनॉटिक का जो ग्रोथ है उस पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट की डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट और आर&डी की कॉस्ट वहाँ की कल्चर के हिसाब से काफी बड़ी आएगी और उसका आरओआई आने में बहुत साल लग जाएगा। लेकिन अगर हमने किसी के साथ मिलके आगे काम किया है, कोई कंपनी के साथ जुड़ के, तो बहुत ही इजीली उसकी फ्रूट्स आ सकती है। right. थैंक यू रुपेश भाई, एंड कांग्रेस थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। So we'll take the next question from Hiten. Hiten Boricha, you can go ahead, please. हाँ जी हितिन भाई। Hiten. So we'll move to the next participant, Ajay Surya. Ajay, you can go ahead. हेलो। हाँ जी अजय भाई। हेलो। Yeah, हाँ जी Hiten, अजय please go ahead. जी, लिसनिंग यू। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। सर, मेरा पहला प्रश्न ये है कि हम लोग 15 से 20 करोड़ का जो केपेक्स कर रहे हैं इस साल, तो इससे कितना मशीन्स ऐड होने वाला है और ये रेवेन्यू कब से स्टार्ट होने वाला है सर? हाँ, मशीन्स ऐड होने में हम लोग डी बॉटल नेकिंग करेंगे, कुछ कंपोनेंट इन हाउस बनाएंगे ये कैपेक्स से, जो हम लोग अपने सप्लायर से ले रहे हैं, और कुछ फैसिलिटीज ऐड करेंगे। तो अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो वी कैन स्ट्रेच इन दिस प्रीमाइसिस कि हम लोग 10% प्रोडक्शन को जंप कर पाएंगे। लेकिन उससे जो कैपेक्स है उससे हम लोग क्वालिटी और कॉस्ट और डिलीवरी, इस पे 3 एक्सपेक्ट पे जो हमें चैलेंजेस दे रहे हैं प्रोडक्शन को रैंप अप करने के लिए, उस पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये प्रोडक्शन खाली बढ़ाने के लिए अजय भाई कैपेक्स नहीं है, ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए है। कुछ इंस्ट्रूमेंट अब लोग अभी नेक्सा प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स परचेस करने, कुछ पिक्चरिंग हमने काफी डेवलप किया है जिससे हमारी मशीन शॉप की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बिल्ड हो। हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट वहां पे कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारा असेंबली टाइम है वो रिड्यूस हो जाए। तो खाली कैपेक्स पे हम लोग प्रोडक्शन रैंप अप से ज्यादा क्वालिटी, कॉस्ट और प्रोसेस टाइम शॉर्ट करने के लिए कर रहे हैं, जिससे मैं मान रहा हूँ कि हम 10% तो आराम से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे। तो सर, इससे नंबर ऑफ मशीन्स नहीं बढ़ने वाली है, राइट? जो अभी हमारी 2000 है वो। नंबर ऑफ मशीन्स डायरेक्टली नहीं बढ़ने वाली है, लेकिन प्रोसेस टाइम रिड्यूस होने से ओके। आपकी मशीनिंग की तो इनडायरेक्टली उनका इम्पैक्ट दिखेगा आपकी। और कुछ कंपोनेंट रिजेक्शन होते हैं, कुछ कंपोनेंट की डिलीवरी लेट आती है, तो अब आप इन हाउस बनाते हो तो आपकी कॉस्ट भी कम होगी और रिजेक्शन और आपकी प्रोडक्शन भी कभी हेल्ड नहीं होगी, तो इनडायरेक्ट बेनिफिट दिखेगा।
ओके ओके सो सर अजय भाई, अपार्ट फ्रॉम दिस कैप आपका वो ट्विटर पे 1 लाख व्यूअर्स वाला आपका ही था मेरे ख्याल से। सर सॉरी लेकिन मैं हितेन बात कर ठीक है, हाँ जी। हेलो Hiten, are you done? Can we move to the next participant? सो एक लास्ट क्वेश्चन था हेलो हाँ Please जी, go हाँ ahead. मैं आगे बढ़ सकता हूँ हाँ जी सर तो मेरा क्वेश्चन ये था अपार्ट फ्रॉम दिस केपेक्स इसके अलावा हम लोग मशीन नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ाने के लिए कोई केपेक्स प्लान है नेक्स्ट 1-2 इयर्स में उसके लिए हम लोग अभी कर रहे हैं काफी बड़ा एक्सपांशन का प्लान, जिसमें मैंने लास्ट मीटिंग में अनाउंस किया था। अब इलेक्शन खत्म हुआ है, एक डिफेंस एंड एरोनॉटिक पॉलिसी 2017 विनय जी के पास है, मैंने भेजी है। उसमें हमने एक वाइब्रेंट गुजरात जनवरी में एक एमओयू किया है। हाँ जी हाँ उसमें हमें गवर्नमेंट ने 2 लैंड दिखाई है जिसकी एरिया है 35 एकड़, और उसमें अब हम जो नेक्स्ट कैपेक्स की बात करेंगे वो नेक्स्ट ईयर के अंदर करेंगे 25 में, और उसमें हम लोग बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्लान कर सकते हैं, जिसमें सारा ऑलमोस्ट सारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन रहेगा, और कैपेसिटी भी 4000 से 5000 की टोटल मिला के हो जाएगी। तो वो हम लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन अब हम 500,000 का ग्रेजुअल का प्लान नहीं कर रहे हैं। हम लोग गवर्नमेंट की हेल्प से जो हमें बेनिफिट्स मिल रहा है ये सेगमेंट में, क्योंकि उनकी पॉलिसीज में टोकन रेट्स पे लैंड है और 80% जीएसटी स्टेट का, तो ऐसी वेरियस फैसिलिटीज वो ऑफर कर रहे हैं। तो हम लोग वेट करेंगे 6 से 8 महीना की गवर्नमेंट हमें कुछ जो पॉलिसी में और उनके साथ हुई मीटिंग में जो कमिटमेंट किया है वो आगे बढ़े। अदरवाइज हम अपने फंड से भी ये साल में कुछ बड़ा एक्सपेंशन का आगे बढ़ सकते हैं। So we'll go to our next participant, Ajay Surya. You can go ahead, please. Am I audible? हाँ जी, हाँ Yes. जी, हाँ जी। हाँ सर मेरा क्वेश्चन पहले सर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर फैंटास्टिक थैंक सर यू, थैंक यू क्वेश्चन अजय भाई। था कि हाँ सर क्वेश्चन था कि सर जैसे अपन ने कैपेसिटी तो बढ़ाया है कि अपन ने 1500 से 2000 मशीन करा है, बट सर मेरा क्वेश्चन था कि सर कैपेबिलिटीज पे अपन कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि सर मैं अपने पुराने प्रेजेंटेशन भी देखूँ ना तो अपने जो ऑर्डर है वो वीएमसी के टूवर्ड्स तो काफी बड़े हैं, पर जो एचएमसी है या वीटीएल है या जो अपने डीसीएम मशीन है वहां पर इतने ऑर्डर इनफ्लो अपन को अभी भी नहीं मिल रहे हैं। तो सर क्वेश्चन यही था कि सर अपन केपेबिलिटीज पे कैसे वर्क कर रहे हैं कि 5 एक्सेस मशीन है या 4 एक्सेस मशीन है उसके टूवर्ड्स अपन क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं। नहीं, देखो, दोनों का क्वेश्चंस आ गया अजय जी की। अभी बात हुआ नेक्सा प्रोडक्ट में 7% का मिला है लास्ट ईयर। ये साल हम लोग 14%, 12 to 16% टारगेट कर रहे हैं, जिसमें डबल कॉलम और वीटीएल और एचएमसी है, और 7 की जगह पे हम लोग उसको 14% तक डबल करके ले जाएंगे। ये प्रोडक्ट को हमने डेवलप किया था, मार्केट में दिया था, लेकिन फिर कैपेसिटी की कंस्टेंट के कारण हमने उसको फोकस नहीं किया था, क्योंकि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से लेके सर्विसिंग से लेके असेंबली लाइन से लेके सारा अलग करना पड़ेगा। तो वो हमने फोकस किया ये साल में। लास्ट ईयर की कंपेयर में हम लोग डबल टारगेट कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन, 4th एक्सिस इज रेगुलर प्रोडक्ट, और 5 एक्सिस का मशीन्स भी अब तक हम लोग डिफेंस में 12 से 15 मशीन्स अब तक हम लोग पास्ट में दे चुके हैं, जिसकी 1 मशीन्स की कॉस्ट अप्रोक्सीमेट 2 to 5 करोड़ रही है। तो 5 एक्सिस हमें डेवलप नहीं करना है, उसको पेनिट्रेट करना है हमें मार्केट के थ्रू। और नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी जो आ रही है अगले 10 साल की, जो रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके लिए हमने R&D सेंटर जो अपना एक मैकपावर में है, और अब हम लोग ने दूसरा बैंगलोर के अंदर लिया है पिनिया एरिया में, और उसको हम लोग Q2 के अंदर फुल्ली ऑपरेशन में लाएंगे, जहाँ पे हम लोग EMS की मशीन्स जो है जिसमें 24,000 RPM का स्पिंडल है, 1 सेकंड का उनका ATC का टाइम है, 15 या 17 सेकंड में वो एक मोबाइल बनना चाहिए, वो सब चीज के ऊपर हम लोग प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं। उसमें नया कुछ नहीं है,
हमारी रेगुलर प्रोडक्ट को अपग्रेड करना है, मॉडिफाइड करना है। वो हम लोग बैंगलोर के थ्रू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 5 एक्सिस और ये सब EMS मशीन्स डेवलप करेंगे। और जनवरी के अंदर जो इंडिया का सबसे बड़ा अजय भाई जो एग्जीबिशन होता है इम्टेक्स बैंगलोर, उसमें हम लोग ये प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। समझ गया सर, समझ गया। सर एक और क्वेश्चन था कि सर जैसे आप बोल रहे हो कि इस ईयर जैसे अपना पाइपलाइन ऑफ ऑर्डर काफी स्ट्रांग है और आप देख रहे हो कि ये ईयर के क्लोज में कुछ 500 550 करोड़ का ऑर्डर रहेगा, और सर आप बोल रहे हो कि 1 से 1.5 साल लगता है एग्जीक्यूशन में। तो सर क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि FY 27 में अपन कुछ 500 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं? क्या डायरेक्शन वैसा ही है फॉर मैक पावर, या मैं कुछ गलत ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ? FY 27 की आप बात कर रहे हैं? हाँ, कि अगर जैसे 1.5 साल जैसा आप बोल रहे हो कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन में लगेगा, और इस ईयर के क्लोज में अगर अपन 500 550 करोड़ का ऑर्डर बुक देख रहे हैं, तो फिर सर उसको एग्जीक्यूट करते टाइम क्या अपन मतलब 500 करोड़ के डायरेक्शन के टुवर्ड्स जा रहे हैं ऐसा? नहीं नहीं, पहली बार 2027 पे 500 करोड़ की जो आपकी रेवेन्यू की बात है, वो उससे ज्यादा हम लोग प्लान कर रहे हैं। दूसरा, अच्छा। ऑर्डर बुक को मैं समझाऊं बहुत सिंपल वे में कि ऑर्डर बुक आपकी समझ के लिए ये कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है या वन टाइम ऑर्डर नहीं है। हम्म। मैंने पहले भी बताया था कि ये आज समझो कि हमारी कैपेसिटी जो है से फॉर एग्जांपल 2000 मशीन, तो 180 ऑलमोस्ट हुई। तो हाँ। हम लोग रोज की 10 मशीन से फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन करते हैं, तो 12 मशीन 15 मशीन की ऑर्डर आती है। ये एवरी डे ऑर्डर बुक चेंज होता है। हाँ। अगर हम लोग जो आपको फिगर दे रहे हैं वो 31 मार्च का है या 1 अप्रैल का है, हम्म। लेकिन 2 अप्रैल को ऑर्डर के अंदर 10 मशीन डिस्पैच हुआ और 12 का नया ऑर्डर हुआ। तो ये ऑर्डर जो है वो हमारी इंडिया की जो 30+ सिटीज में नेटवर्क से हमारा सेल्स एंड सर्विस का और हाँ। टेंडर बिडिंग ओपन होता है, तो एवरी डे प्लस माइनस होता है। लेकिन हमारे पास जो डाटा है उसमें 22% हर महीने हमारी ऑर्डर बुक ग्रोथ कर रही है कंपेयर हाँ। टू डिस्पैच। जो ऑर्डर है उसमें से रोज डिस्पैच होगा, रोज नया ऑर्डर आएगा। अगर उनको हम लोग मंथ ऑन मंथ कैलकुलेट करते हैं, तो 22% की एवरेज आ रही है कि हमारी ऑर्डर बुक इंक्रीज हो रही है आफ्टर डिस्पैचेस। तो अच्छा। 2027 तो मेरे ख्याल से पिक टाइम रहेगा ग्रोथ का। ये तो दूर की बात है, शायद उससे पहले भी हम प्लान कर ले ये। लेकिन हमारा जो जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ेगा, और नेक्स्ट ईयर के लिए भी हम कुछ कैपेक्स डाल के एटलीस्ट 500 मशीन्स की हमारा नया जो प्रोजेक्ट्स है उसका कंस्ट्रक्शन चलने में भी 1 आध साल लगेगा। तो हम लोग जो प्लान करेंगे 27 में, यस वी कैन क्रॉस 500 करोड़ और मोर। गॉट इट सर, गॉट इट। और सर एक थोड़ा सा वही सजेशन या वैसे रिक्वेस्ट था कि सर अपन अगर अपनी प्रेजेंटेशन में जो थोड़ा कौन से सेगमेंट या सेक्टर को अपनी मशीनें जा रही है, अगर वो डेटा अगर प्रोवाइड कर पाएंगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा। We उतना have given broad sectors and companies to whom we supply, but we've not given a sectoral breakup of revenue because that keeps changing dynamically. या मतलब if you can provide that just for every quarter, like post the quarter presentation. नहीं, वो जी उसमें क्या है कि आप अगर पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस्ड करके काम करोगे ना, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी ओपन है, आपको जो एरिया से जो सेक्टर से ऑर्डर आता है उस पे फोकस्ड करना है। अगर आप पर्टिकुलर सेगमेंट पे फोकस करके काम करोगे, कुछ भी अप्स एंड डाउन हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि मैं कोई भी सेक्टर में 10 12 15% से ज्यादा फोकस करके नहीं चलना है। आपको नेचुरल कोर्स में जो एरिया से आ रहा है ऑर्डर उसको एग्जीक्यूट करो। लेकिन मोटा मोटा जो कंजप्शन है जो एरियाज में, उस एरिया में आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि कुछ सेगमेंट्स और कुछ, क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस जो है और सेगमेंट है नियरली 3000 है, लेकिन हर सेगमेंट बूम में नहीं होगा। कभी सबमर्सिबल अप है, अगर अपना मॉनसून का टाइम है तो सबमर्सिबल डाउन रहेगा। तो सेगमेंट सेलिंग अभी करने की जरूरत नहीं है। सेगमेंट सेलिंग हम करेंगे
आप जब 6000 मशीन्स पे कैपेसिटी बिल्डअप करते हो, नए प्लांट में सारी प्रोसेस और बैकवर्ड इंटीग्रेशन आपके कंट्रोल में है, फिर आप सेगमेंट वाइज उसको यूनिट में डिवाइड करके काम कर सकते हो। अभी करना ठीक नहीं है। गॉट इट, ठीक है सर, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। I would request all participants to keep it down to 2 questions since we have a lot of people in the queue. We'll take the next question from Rohan. Rohan, you can wait, please. Yeah, thanks for the opportunity and congrats on a good set of numbers. सर मेरे you very मोस्ट ऑफ माय क्वेश्चंस आर आंसर्ड। मुझे सिर्फ एक समझना था सर, हमारा अभी कैपेसिटी है 1500 मशीन का और हमने ये साल 90% के आसपास हम यूटिलाइज कर रहे हैं और 19 से 20 लाख का रियलाइजेशन है। तो 1 जुलाई से जब 2000 मशीन का कैपेसिटी होता है और 20 लाख का रियलाइजेशन होता है और अगेन 90% आप यूटिलाइज करते हो, तो अराउंड 360 करोड़ का पीक रेवेन्यू आप कर सकते हो ये कैपेसिटी से। ये सही है या आप उतने ही मशीन बेच के 25 लाख का भी रियलाइजेशन ले सकते हो? दोनों चीज हो सकती है, उसके बारे में ज्यादा एडवांस फॉरवर्ड लुकिंग हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लो। लेकिन मैं जो मान रहा हूँ, हम लोग आयरन मशीन्स बनेगा रोहन भाई, तो आपका समझो कि एक मशीन 1 करोड़ का बन रहा है, तो उसको बनाने में 5 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। लेकिन 20 लाख का मशीन है तो आपका 3 दिन में हो जाएगा। तो उसका आपका प्रोडक्शन एरिया में वो मशीन पड़ा रहेगा प्रोसेस के कारण। तो जैसे आपकी हाई वैल्यूड मशीन्स बनती है तो एवरेज आपकी नंबर ऑफ मशीन्स की कम हो जाएगी। अगर आप 25 मशीन 30 मशीन की बात 30 करोड़ 30 लाख की बात करते हो तो नंबर्स कम होगा। तो मोटा मोटा हम लोग आप कैलकुलेट कर सकते हो कि वो एग्जीक्यूशन करने का ट्राई करेंगे जो फिगर्स आप बोल रहे हो। गॉट इट। और सर 2000 मशीन का कैपेसिटी जब बढ़ गया एक बार, उसके आगे हमको लैंड लगेगा और मतलब वो नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में ही एक्सपैंड होगा उसके ऊपर? 2000 के बाद अभी भी यही प्रीमाइसिस में हमें नेक्स्ट, क्योंकि लैंड के बाद 1 साल कंस्ट्रक्शन चलेगा, तो नेक्स्ट के लिए अपना 2500 ऑलमोस्ट 500 करोड़ तक का रेवेन्यू के लिए हमारे पास ये प्रीमाइसिस में जगह है। ओके, गॉट इट, थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच रोहन भाई। We'll take the next question from Ronak Mishra. Please go ahead. Hi, sir. Good afternoon. Congratulations on a great set of numbers. Thank you. Sir, Thank you. my question was that next quarter में what kind of revenue can we expect? Like Next quarter means this Q1. yeah, Q1. So Ronak, we want to avoid giving quarterly guidances. Okay, sir. And like, what is the outlook for the next financial year? Like, what kind of revenue could we achieve? Like, As we already discussed on that capacity is almost nearly a 400 crore and will, as per our order book and execution time, you can assume that, but minimum, as we always say, 20 to 25% minimum growth will achieve. okay, sir. That's lovely. Thank you so much, sir. All the best. Thank you. Thank you. We'll take the next question from Jatin Jadhav. Please go ahead. Hello, am I audible? Yeah, Jatin bhai, you are audible. Congratulations, Rupesh bhai. Good set of Thank you numbers very के लिए। much, Jatin bhai. Yeah. सर एक ही क्वेश्चन था अपना, बाकी सब तो सब लोगों ने क्लियर ही कर दिया है कि अपना जो अपन बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो कौन सी चीज़ों में मतलब कंपोनेंट्स में कर रहे हैं, और ये सिमिलर बैकवर्ड इंटीग्रेशन अपना कंपटीशन भी कर रहा है, उनके भी प्लान्स हैं कि क्या? वो थोड़ा लैंडस्केप समझना था बस। कॉम्पिटिटर का तो मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ कंपोनेंट है क्रिटिकल्स है और फ्यू प्लेयर्स इज ओनली मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, और वो नाम बोलने से सप्लाई बंद कर देंगे। लेकिन 6 या 7 कंपोनेंट्स है जिसकी अंदर हम लोग जिसमें हाइड्रोलिक्स है, कुछ टेलीस्कोपिक है, और भी 4 कंपोनेंट है जिसको हम लोग उसमें से ऑलमोस्ट 20% प्रोडक्शन में आ गया है। ऑलमोस्ट ये सब बैकवर्ड इंटीग्रेशन हम लोग Q3 तक हम लोग 100% पे आ जाएंगे। जो हम लोग सप्लायर से ले रहे हैं अब हम इन हाउस करेंगे। तो सर अपनी कैपेबिलिटी इन हाउस ही डेवलप की है कि अपने
ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये कैसे है? नहीं, अपने पास इंडिया की बहुत फ्यू प्लेयर्स है। बहुत अच्छा क्वेश्चन जतिन भाई है आपका, क्योंकि मैक पावर ने अपने एक्सपीरियंस से और अपने R&D की एक्सपीरियंस टीम से ये सब प्रोडक्ट बनाया है। अब तक हमने ना किसी का हेल्प लिया है, ना हमने किसी से जेवी किया है, ना किसी को हमने कोई टेक्नोलॉजी का पैसा दिया है। ये सारा चीज जो है हमारी स्किल्ड 800 प्लस जो मैन पावर है, और उसमें हमारे पास 45 से ज्यादा R&D की टीम है, और हम लोग बैंगलोर के अंदर अनदर 35 to 40 की टीम ऐड कर रहे हैं। तो 100% इंडिजिनस है ये पूरा। आप कह सकते हैं कि हमने इन हाउस डेवलपमेंट किया है। बहुत बढ़िया सर, बस इतने ही क्वेश्चन है सर। ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए, ऐसे ही थैंक परफॉर्म यू वेरी करते मच रहिए। जतिन भाई, ऑल द बेस्ट। Thank you. We'll take the next question from Dikshit. Please go ahead. या हेलो। हाँ जी दीक्षित भाई, हाँ जी। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अच्छे थैंक यू वेरी रिजल्ट मच। दिए। या सो मेरा क्वेश्चन ये था सर, आप एक्सपोर्ट के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? जो एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए उस पर आपका कुछ फोकस वगैरह है, उसके लिए मुझे आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं प्लीज? एक्सपोर्ट के लिए दीक्षित भाई टू टाइप की अपॉर्चुनिटीज है कि एक बाहर की कंपनीज जो है जिनको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, वो अपनी डिज़ाइन से हमारे पास बनवा सकती है मशीन्स। और दूसरी है कि हम उनको कुछ कंट्रोल के बगैर की सब सेमी असेंबल्ड मशीन दे, लेकिन वो दोनों चीज़ हमने अभी एक्सेप्ट नहीं की है कि हम किसी के लिए अपनी प्रोडक्शन लाइन यूज़ करें और वो एक्सपोर्ट करें बाहर की कंपनी उनकी ब्रांड से। तो दूसरी आई है एक्सपोर्ट में कि आप विदाउट कंट्रोल CNC कंट्रोल हमें मशीन दो, कंट्रोल वो कंट्री फिट करेगा, वो भी हमने डिनाइड की है। और तीसरा एक्सपोर्ट के लिए जो मैंने बताया कि अभी टू अर्ली टू सेल द मशीन इन अब्रॉड, क्योंकि हर एक कंट्रीज की सॉफ्टवेयर, उनकी लैंग्वेज और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाएगी और उतना ROI नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग एक्सपोर्ट पे फोकस करना चाहते हैं आफ्टर न्यू एक्सपांशन, तो हमें अपने कोई पार्टनर्स के थ्रू जाना चाहिए जिनकी वर्ल्ड वाइड बहुत सालों से वहाँ पे होल्ड है। तो एक जॉइंटली एक्सपोर्ट पे काम करना चाहिए। तो ये साल पे भी हम लोग डायरेक्टली फोकस नहीं कर रहे हैं, कुछ इनडायरेक्ट ऑर्डर्स हमें आते रहते हैं वेबसाइट के थ्रू या कोई एग्जीबिशन के थ्रू, लेकिन फोकस्ड नहीं रहेगा। ओके, सो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग अभी तक हमारा एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू अफेक्ट होता है हमारी जो बैलेंस शीट में, वो बिलो 2-3% है, राइट? वही रहेगा, उसमें ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन, थैंक यू। Thank you. We'll take the last question for the day from Darshan Patel. Darshan, you can go ahead, please. Hello sir, am I audible? या दर्शन भाई, यू आर ऑडिबल। Okay. सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मशीन्स हमारे पास जो भी कैटेगरीज है मशीन्स की, उसको बनाने में कितना वक्त लगता है हमें? एवरेज उसका मॉडल टू मॉडल दर्शन भाई टाइम अलग रहेगा। एक टर्निंग मशीन है, वो हम लोग एक साथ बैचेस में लेते हैं, लेकिन एवरेज मॉडल टू मॉडल और उनकी जो फीचर्स है उसके हिसाब से। लेकिन आप देखो तो एक टर्निंग मशीन्स की जो लाइन है उसमें हम लोग एवरेज 100 मशीन्स लगाते हैं, और वो महीने में तो एवरेज 2 दिन में एक टर्निंग मशीन असेंबल होता है, 3.5 days में एक VMC हो जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, 12 आवर्स की एक शिफ्ट में एक आदमी 2 आदमी होता है। तो बनाने के लिए स्टार्ट टू एंड अगर हम लोग कंटिन्यूस वर्क करते हैं तो आवर्स के वाइज टर्निंग मशीन विल टेक 48 आवर्स, एंड जो आपका VMC है वो एवरेज 55 to 60 आवर्स में असेंबल होता है। और जो सर VTL है, HMC हो गया, DCM हो गया, वो सब में एवरेज आपका देखो तो बहुत, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी उतना उसका टाइम बढ़ेगा। HMC असेंबल करना ऑलमोस्ट 20 days कंटिन्यूसली लगेगा। सेम DCM में VTL वी कैन असेंबल नाउ, क्योंकि हम लोग एवरेज 2-3 मशीन VTL डिस्पैच कर रहे हैं, तो 12 to 13 days में असेंबल होता है।
सर तो फ्यूचर में असेंबल करना, ये मैन्युफैक्चर करना टाइम कम हो सकता है? नहीं, ये आप बोल रहे हैं वो एक लाइन में एक मशीन पड़ा है, उसमें 2 लोग काम कर रहे हैं, 12 दिन में वो मशीन कंप्लीट करेंगे। आप ऐसी 10 लाइन लगा रहे हो जहाँ पे 10 मशीन असेंबल हो रहा है, तो 10 टीम होती है। ये ऐसे नहीं है कि एक मशीन बनाया और वो अब दूसरा मशीन बनाने गया। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। और ये ठीक है। प्रोसेस वाइज होती है। नॉर्मली कैसे होता है कि प्रोसेस 1 है बॉल स्क्रू लगाना, उसके लिए 12 लोग काम कर रहे हैं, सारी मशीनों की बॉल स्क्रू लगाते हैं। ये ऑटोमोबाइल की तरह होता है, एक आदमी एक ही काम करता है। उसके ऐसे जैसे 15-20 लोगों की टीम होती है, वो खाली बॉल स्क्रू लगाते हैं, कुछ लोग खाली एलएमई लगाते हैं, कुछ लोग खाली सीएनसी कंट्रोल लगाते हैं। तो पूरी उनकी कैपेसिटी और कैलिबर्स भी बढ़ेगा। तो असेंबली इस तरह से होती है, लेकिन हम लोग उसको करते हैं कैपेसिटी के हिसाब से कि पर मशीन पर मंथ की 180 मशीन की कैपेसिटी है। तो हम लोगों के पास असेंबली की कॉस्टिंग भी होती है कि हमारी एवरेज असेंबली कॉस्टिंग टर्निंग मशीन वीएमसी की कितनी आनी चाहिए। और रोज का रोज प्रोसेस होता है कि आज जो सीरियल नंबर 107 पे 4 आवर्स का जो टाइम था बॉल स्क्रू का, वो 4 आवर का काम 4 आवर में हुआ कि नहीं है, तो उसकी एक एमआईएस रिपोर्ट भी बनती है। ऑलमोस्ट हम लोग 2% प्लस में रहते हैं, असेंबली जल्दी करते हैं। कभी हमारी असेंबली फाउल हुई है ऐसा नहीं हुआ है, वो होगा भी तो हम लोग उसको रिकंसिलेट कर लेते हैं ओवरनाइट करके। तो असेंबली के लिए इस तरह से नहीं है कि 2 आदमी ने 15 दिन में एक मशीन बनाया तो दूसरे 15 दिन में दूसरा बनाएगा। जी अंडरस्टूड अंडरस्टूड सर। ओके, वन थैंक लास्ट क्वेश्चन। हाँ वन दर्शक। लास्ट क्वेश्चन सर, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है उससे कितना मार्जिन एक्सपांशन हो सकता है? 2% मिनिमम, अप टू 4% कैन पॉसिबल। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you. So that is the last question for the day. Would you like to give any closing comment? तो थैंक यू वेरी मच विनय जी फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन आपने बनाया है, काफी मुझे अप्रिशिएशन भी मिला है। फिर मैंने बोला नीचे नाम किसका है वो देखो। और आपने बहुत अच्छी तरह से मीटिंग को भी कंडक्ट किया। और थैंक यू वेरी मच जो पार्टिसिपेट है, ये आपकी कंपनी में जो आपने विश्वास रखा है और वो डिलीवर्ड वो प्रोमिसेस जो भी हमने किए हैं वो हमने अब तक फुलफिल किए हैं। और आप लोगों की विशेष से और भगवान की स्ट्रेंथ से हम जो भी आपको प्रॉमिस कर रहे हैं उससे ज्यादा डिलीवर करेंगे और हम जल्दी ही आपको मिलेंगे। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you to all the participants for joining on the call and to the management for joining on this call. This brings us to the end of today's conference call. You may all disconnect now. Thank you, sir. थैंक यू।